Hello everyone, how are you my English Knights? Guys, I hope all you will be fit and fine in this corona period. Students, today I am here with a new topic of English literature, that is William Shakespeare. This is very important topic for all competitive exams such as TGT English, PGT English, Kendriya Vidyalaya exams and नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में इंग्लिश का अगर एग्ज़ाम है तो उन सभी में विलियम शेक्सपियर को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। विलियम शेक्सपियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन विलियम शेक्सपियर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, मैं ये हियर यू आर लुकिंग एन इमेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, अ ग्रेट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज born in April 23rd, 1564 and died on April 23rd, 1616. Students, today now I am going to tell you about the life of William Shakespeare. He, as I have told you, he was born on April 23rd, 1564. The place was at Stratford-on-Avon. Father. His father was John Shakespeare, who was a worthy businessman. John Shakespeare was died in 1601. So far as his mother concerned, his mother's name was Mary Arden, who was a daughter of a rich farmer. She died in 1608. Now I am going to tell you something about his education. He started his education at Free Grammar School at the age of 8. At the age of 8. There he learnt little Latin and small Greek. He stopped his education at the age of 13 because of the family condition. He had to take up a trade of a butcher. Butcher means a person who sells meat. And he taught in Free Grammar School. Worked as he had to work as an apprentice to a lawyer. Apprentice means assistant or attendant. That is helper. Lawyer means advocate or vakil. Let me know something about his marriage. At the age of 18 and a half years old, he did marriage with Anne Hathaway, who was 8 years and a half years senior to him. He had a son named Hamlet, who was died in 1586. He had two daughters, Susan and Judith.
Susan and Judith. The son's name of Hamnet, and two daughters, Susan and Judith. लाइफ इन लंदन। अब देखिए, थोड़े दिन बाद शेक्सपियर अपने घर आ गया, अपने क्योंकि उसके फादर का जो बिजनेस था उसमें लॉस हो गया था और इसीलिए इसने उसे छोड़ दिया था। नाउ ही डिड फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस ऑफ स्टीलिंग डियर। वहाँ पर अब वो फ्रिक्वेंटली स्टीलिंग डियर स्टीलिंग का वर्क करने लगा। और ही टर्न्ड लाइफ इन द पार्क ऑफ सर थॉमस लूसी। अब उसने सर थॉमस लूसी पार्क में एक दिन वो पकड़ा गया और वहाँ से उसकी लाइफ चेंज हो गई। नाउ ही मूव्ड टू लंदन अबाउट द एज ऑफ 21। अब वो लंदन आ गया और जब उस समय जो उसकी एज थी दैट वाज 21। ही बिगेन टू वर्क एज अ स्टेबल कीपर एट ग्लोब थिएटर एंड वेयर the work was to keep the horses of the audience who had no servants. वहाँ पर स्टेबल कीपर, स्टेबल मीन्स होता अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर kept. Soon he turned an actor and impressed everyone. अब जैसे आपने वो देखी होगी स्वर्ग मूवी, उसमें गोविंदा जो था वह पहले वो टी डिस्ट्रीब्यूटर का, एक टी बॉय का काम करता था, वो चाय बेचता था। और लेकिन उनको देखते देखते वहाँ जब वो एक्टर्स को एक्टिंग करते देखता था तो उसको एक्टिंग आ गई और वो बहुत बड़ा एक्टर बना था। और ऐसे ही इसमें इसको ये जो था विलियम शेक्सपियर, तो ये उनको देख देख के जब वो घोड़ों को लेकर बाहर खड़ा रहता था तो वहाँ पर वो उनकी एक्टिंग भी देखता था, एक्टर्स की जो रिहर्सल वगैरह होते थे। तो अब उसने भी एक्टिंग स्टार्ट कर दी एंड ही इम्प्रेस्ड एवरीवन. नाउ ही started to take interest in revising and recruiting the old plays and started to write his own work and became a famous dramatist. Play after play started to flow from his pen. अब उसने क्या किया, वो एक बहुत बड़ा फेमस आर्टिस्ट बना, ड्रामेटिस्ट बन गया और एक के बाद एक प्ले आफ्टर प्ले ही 88 से स्टार्ट करके और 1588 से स्टार्ट किया और 1611 तक कंटिन्यू लिखता रहा. नाउ ही हैड कम बैक टू स्ट्रेटफोर्ड in 1599 and acquired a share in Globe Theatre on his own cost. A big share in Globe Theatre, यानी कि एक तरह से उसने ग्लोब थिएटर को परचेज ही कर लिया. Now he left the writings in 1611, यानी कि उसने 1611 तक उसने लिखा. Queen Elizabeth honored with the title The King's Players. क्वीन एलिजाबेथ थी उसके समय में और उन्होंने विलियम शेक्सपियर को द किंग्स प्लेयर्स का टाइटल दिया. अब बच्चों, जब कोई बॉर्न होता है तो फिर उसकी डेथ भी होती है. तो सो वॉज विद विलियम शेक्सपियर. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 52 इन अप्रैल 23rd 1616. He was buried in chancel of Stratford Church. Here it is very important to tell you about dramatic works. उसका एक बहुत, उसने इतना लिखा, बहुत लिखा. तो it is divided into groups. Pre-Shakespearean group touched by Shakespeare. अब देखिए, pre means होता है पूर्व. शेक्सपियर से जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो उसने लिखा, जिसको उसने टच किया था, टाइटस एंड्रोनिकस 1588 to 1590. हेनरी फिफ्थ नहीं सॉरी 6th Part 1 1590 to 1591. अर्ली कॉमेडीज
Early comedies: Love's Labour's Lost 1590, Comedy of Errors 1591, Two Gentlemen of Verona 1592 to 1593, Midsummer Night's Dream 1593 to 1594. मार्लो शेक्सपियर ग्रुप, मार्लो जो था वो भी उसके समय में लिखता था। अब देखिए अर्ली हिस्ट्रीज उसने लिखी दोनों ने मिलके। हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड एंड थर्ड, रिचर्ड थर्ड। हेनरी सिक्स और पार्ट सेकंड और थर्ड उसने कब लिखे? पार्ट फर्स्ट लिखा उसने 1590 में और सेकंड उसने लिखा 1591 में और थर्ड 1592। रिचर्ड थर्ड 1593। स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल प्लेस लिखे थे उसने ज़्यादातर। अर्ली ट्रेजेडीज, अर्ली ट्रेजेडी उसने स्टार्टिंग में कौन सी लिखी? रोमियो एंड जूलियट। इट वॉज अ लव ट्रेजेडी। जैसे हमारे भारत में है कि हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल, ऐसे ही रोमियो जूलियट की स्टोरी है जो लिखी गई 1591 में। मिडिल हिस्ट्री, अब देखिए मिडिल हिस्ट्री कौन कौन सी लिखी? रिचर्ड सेकंड, किंग जॉन। रिचर्ड सेकंड 1594, किंग जॉन 1595। मिडिल कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596। अब हेनरी ही उसने लिखे। हेनरी सिक्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नाउ ही रोट हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड 1597 1598। हेनरी फिफ्थ, ये यू आर लुकिंग एन इमेज ऑफ हेनरी फिफ्थ, ये देखिए 1599। लेटर कॉमेडीज कर, अब उसने ये कॉमेडीज लिखी, ये 3 पार्ट में थी। रफ एंड बॉयस्ट्रस A, B, C, जॉयस रिफाइंड कॉमेडी। C, सीरियस डार्क आर्टिकल्स। टेमिंग ऑफ, अब रफ एंड बॉयस्ट्रस कौन कौन सी थी? टेमिंग ऑफ श्रो 1597, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर 1598। जॉयस रिफाइंड एंड रोमांटिक कॉमेडीज, मच एडो अबाउट नथिंग 1598, एज यू लाइक इट 1599, ट्वेल्थ नाइट 1601। कॉमेडीज, व्हाट आर कॉमेडीज? यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आर कॉमेडीज, कि मैम बता रही है कॉमेडीज। कॉमेडीज तो मैम ने हमें बताई नहीं है, तो बेटा उसके लिए ना मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी कॉमेडीज़ की और ट्रेजेडीज़ की। फिलहाल आप ये समझ लिए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है और ये भी उसकी एक आर्ट है। तो उसके एक अलग से वीडियो में कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ की बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें पूछी जाती है ये एग्जाम्स में, ऐसे नहीं बनाऊंगी मैं, मेहनत करूँ, आप देखो भी ना। एज यू लाइक इट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। ट्वेल्थ नाइट, इट इज़ ऑल्सो सीरियस डार्क आर्टिकल्स, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1601, Measure for Measure 1603, Trials and Cressida 1603। मिडिल ट्रेजेडीज़, अब देखिए मिडिल ट्रेजेडीज़ कौन कौन सी हैं? जूलियस सीजर 1601। जूलियस सीजर एक बहुत ही सुंदर ट्रेजेडी इसने लिखी है। सुंदर इट मीन्स इन विच सीजर वॉज assassinated by his own colleagues, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए, जूलियस सीजर वॉज रिटन इन 1601। हेमलेट 1602। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। एंटनी ओथेलो 1604, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1607, टाइमन ऑफ एथेंस 1608, क्रायोलेनस 1608। नाउ कम्स रोमांसेस। पेरिक्लस, ये लास्ट में उसने बचा तो टाइम, उसने फिर रोमांस लिखने स्टार्ट किए। पेरिक्लस 1601,
सिम्बेलाइन 1609, टेम्पेस्ट 1610। टेम्पेस्ट की भी एक वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों, जिसकी मैं करा सकती हूँ उनकी आपको वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। द विंटर्स टेल 1611। अब नाउ कम्स कॉमेडीज। कॉमेडी, अब देखिए ये मैंने आपको एक सारी एक सीक्वेंस में लगा दी है। कॉमेडीज क्या है? टाइटस एंड्रोनिक्स, हियर यू आर लुकिंग इमेज ऑफ कॉमेडीज। टाइटस एंड्रोनिकस, लव्स लिवर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। टाइटस एंड्रोनिकस 1518 to 19, लव्स लिवर्स लॉस्ट 1519 90, कॉमेडी ऑफ एरर्स 1591, टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा 1592 to 93, मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1593-94, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, टेमिंग ऑफ द श्रू 1597, मच एडो अबाउट नथिंग 1598, मैरी वाइफ्स ऑफ विंटर 1598, एज यू लाइक इट 1599, ट्वेल्थ नाइट 1601, all's well that ends well 1601, measure for measure 1603, Trylas and Cressidia 1603। स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा लिखा, आप भी सोच रहे होंगे लिख लिख के थक गए होंगे। तो ट्रेजेडीज, रोमियो एंड जूलियट, दिस इज अ लव ट्रेजेडी एंड रिटन इन 1591, हैमलेट 1602, अथेलो 1604, King Lear 1605, Macbeth 1606। Here student, this is must know, these are four great tragedies। और ये कंटिन्यू 1602, 1604, 1605, 1606 चारों इस सीक्वेंस में लिखी गई हैं। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1607, टाइमन ऑफ एथेंस 1608, क्रायोलेनस 1608। रोमन हिस्ट्रिकल प्लेस, अब बताती हूँ आपको रोमन हिस्ट्रिकल प्लेस। रोम जो रोम से रिलेटेड थे। जूलियस सीजर 1601, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1607, क्रायोलेनियस 1608। नाउ इंग्लिश हिस्ट्रिकल प्लेस, अब देखिए हिस्ट्रिकल प्लेस, ये आपको यू आर लुकिंग एन इमेज हियर, दिस इज द इमेज ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। As I have told you in my pre-slides, Henry VI Part 1 1590 to 91, Henry VI Part 2 Part 3 1591 to 92, Richard III 1593, Richard II 1594, King John 1595, Henry IV Part 1 Part 2 1597 1598, Henry V 1599, Henry VIII। बच्चों, according to my data, it was written in 1613, but there is a controversy when he started to stop to write in 1611. How could he write Henry VIII in 1613? So students, it is not confirmed whether it was written in 1613 or not. So it is must know the more English historical play was Henry VIII only. Romances of last place, Pericles 1601, Cymbeline 1609, Tempest 1610, Winter's Tale 1611। तो बच्चों, आपको अगर मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको ज़रूर देखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं और आगे भी इसी तरह से कराती रहूँगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो जैसे वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं और मैनी मोर वीडियोस आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माय चैनल सविता अग्रवाल इंग्लिश नाइट्स और इंग्लिश बस सविता अग्रवाल।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैसे आप लाइक और शेयर करते नहीं हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो पता नहीं कितने लोगों को हेल्प करे। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।